this video, we will discover that it is a high time. You know that only the 30 days are remaining for the IPMET paper, which is scheduled on 23rd May. So it is a very appropriate time to come up with a 30 days strategy that in the last 30 days, what you guys will do that will boost your scores, right? So a claim or disclaimer in the beginning of the video is that in this video I'm not giving you any unrealistic targets that you need to study around 18 to 20 hours in a day. We will talk about the pragmatic solutions which we can adopt or you guys can follow. तो जिससे आपके जो marks है that can substantially increase, right? So in this video, as you know that in the IPMET paper, particularly in the indoor, there is only quants and verbal ability. But in this video, we will discuss about all three sections: quants, verbal ability, as well as logical reasoning. Because logical reasoning comes in the other entrance exams also, right? So guys, ये जो सामने screen present हो रहा है, I know कि this is not very clear, but do not worry, I'll attach the link of the file in the comment section. Okay, so you can find the link in the comment section. So you can see that there are some blue boxes, a blue box in a quants, verbal ability, and logical reasoning. In the three sections, there is a blue box. So what does the blue box signifies? It means that there is a thing which you need to do daily. So if I talk about the quants, so in the quants, every day you have to attend one sectional test. You have to give one sectional test of quants every day. Along with that, the formula revision is must. You know what the जो हमने पहले पढ़ा है उसका formula revision you should do on everyday basis, right? Talking about the verbal ability includes same the one section test daily and vocabulary, which is like you can revise or you can learn 25 vocabularies in a day. Then two reading comprehensions. Two reading comprehension is must on daily basis, right? 3 paragraphs, idioms and phrases. 10 idioms and phrases can be the good number which you can go through on daily basis, and then 10 phrasal verbs again, right? Guys, if you can see that if you will solve 2 reading comprehension, so till 30 days you will be go through from the 60 reading comprehension, and I think that is a good number, for the practice. And if I talk about the logical reasoning, so the same one section test daily for the logical reasoning also. Along with that, solve one puzzle and one DI case lit on daily basis. So what is common in all these three sections is a one sectional test daily, right? So you can see that कि day 1 to 3 में quants भी है, verbal ability and logical reasoning भी है. So आपको कोई एक पर्टिकुलर डे आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन पे फोकस नहीं करना. रिमेंबर दिस थिंग, आपको हर एक दिन जो तीनों सेक्शन है ना उनसे गो थ्रू करना है. लाइक क्वांट्स का कुछ पढ़ लिया, वर्बल का एबिलिटी का कुछ पढ़ लिया एंड लॉजिकल रीजनिंग का कुछ पढ़ लिया. एक सिंगल डे पे लाइक ऐसे नहीं करना कि मैं स्टार्टिंग के 3 डेज सिर्फ क्वांट पे फोकस करूंगा एंड नेक्स्ट इन अपकमिंग डेज आई विल फोकस ऑन अदर सेक्शन, राइट? दिस इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच. एक और चीज कि इफ यू सी लाइक डे 1 to 3 में you will go through from the topics, okay, and on each day 4 like मतलब हर 3 दिन छोड़ के day 4 पे mock test and analysis है, okay. Now I will tell you कि ना जो कॉन्सेप्ट है ना उसमें कैसे एक अप्रोच फॉलो करनी है, राइट? So the first thing is जब कभी भी अगर तुम IPMET, if I talk about specifically about IPMET इंदौर, तो IPMET इंदौर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पैटर्न्स को देख के जो एक पजल का क्वेश्चन है ना वो हमेशा आता है. एंड पजल का क्वेश्चन कम्स विद लाइक उस एक पजल के सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, राइट? तो द फर्स्ट थिंग यू वांट टू डू इज दैट उस पजल के क्वेश्चन पे कूदना तुमको, राइट? इफ यू थिंक कि हाँ ये पजल का क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे, इट इज वेरी इजी, सो फर्स्ट डू दैट. एंड इफ यू थिंक दैट ए पजल क्वेश्चन वेरी मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है, लाइक इफ आई टॉक अबाउट 2022, सो देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, राइट? और उस वाले लाइक उस टाइम में जो ये गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का क्वेश्चन बिल्कुल एकदम नया कॉन्सेप्ट था. तो उस टाइम लाइक ऑलमोस्ट 90 to 95% जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने क्वेश्चन छोड़ा था, राइट? सो दैट वाज अ गुड अप्रोच एट दैट टाइम. बट इफ आई टॉक अबाउट 2023, तो उसमें जो क्वेश्चन था पजल का दैट वाज वेरी इजी. आई नॉट से वेरी इजी बट इट वाज काइंड ऑफ मॉडरेट. तो उस टाइम तुम उसको अप्रोच कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन, राइट? सो गाइस यहाँ पे ये ना जितने भी सारे टॉपिक्स हैं ये लिखे हुए हैं. आई विल शेयर द शीट, डू नॉट वरी. यहाँ पे मैं तुमको टॉपिक्स ही बताऊंगा कि तुमको कौन कौन से ये टॉपिक्स कौन से डे करने हैं. दैट जो भी एक्सेल शीट है यू विल गेट, राइट? The basic, like I will tell you the few tips what you keep in mind while you are attempting the any mock and while you attempt the real paper, right? So the first thing is that you do not have to skip any topic. Listen it again that you do not have to skip any topic. अगर कोई टॉपिक तुमको बहुत हार्ड लगता है, तुमको लगता है कि like I can't do this thing, okay, you cannot do, but the basic formulas, the basic understanding of that topic is must.
सपोज दैट यू आर गोइंग थ्रू लाइक यू आर गोइंग थ्रू अ मॉक और यू आर गोइंग थ्रू अ रियल एग्जाम, राइट? तो वहाँ पे जैसे सपोज कि तुमने ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दिया, बट व्हाट इज द केस कि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इजी क्वेश्चन आया और जितने सारे लोग थे ना उन सब ने उस क्वेश्चन को अप्लाई किया, उस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व किया, और तुमने उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, राइट? तो उस सारे केस में जो क्वेश्चन बहुत ईजी था वो तुमने सॉल्व नहीं किया, तो मतलब तुम एक रेस से बहुत पीछे हो जाओगे, ठीक है? सो फर्स्ट थिंग इज दैट आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, ओके, लेकिन जो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, दैट शुड बी वेरी क्लियर, राइट? नाउ इफ आई आस्क की क्वांट्स में द लाइक तुमको सबसे इजी टॉपिक क्या लगता है? आई थिंक द मोस्ट ऑफ यू आर आंसर की अर्थमेटिक, राइट? क्योंकि लाइक बहुत सारे लोगों को अर्थमेटिक अच्छा लगता था, अर्थमेटिक इज इजी टू सॉल्व, कि सॉल्व हो जाता है। बट डू रिमेंबर गाइस, इफ यू आर अटेम्प्टिंग द आईपीमेट इंदौर पेपर और आईपीमेट इंदौर मॉक, द वन थिंग यू शुड कीप रिमेंबर लाइक कीप इन माइंड इज दैट कि जब कभी भी तुम अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट ये होगा कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट समटाइम जो पेपर सेटर होता है ना, वो उस क्वेश्चन को इतना डिफिकल्ट कर देता है, इतना डिफिकल्ट कर देता है कि तुम उस पर लाइक वो तुमको टेस्ट करता है कि ना ये बंदा इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेगा या फिर इसको बाद में लाइक अगर टाइम बचा तो उस टाइम सॉल्व करेगा। तो अगर अर्थमेटिक का बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आ जाता है, सो उसके साथ अपने आप को एंगेज मत करना। ऐसा नहीं कि अपना लाइक ईगो बीच में लो कि ये क्वेश्चन तो मुझे करना ही है क्योंकि मैंने इसका पढ़ा है, दिस शुड नॉट बी द केस। एक बार क्वेश्चन को देखो, आप तुमको लगता है कि ये बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट गो में हो जाएगा, देन डू इट राइट नाउ। इफ यू थिंक कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, डू इट लेटर, राइट? लाइक जब अगर टाइम बचे तो उस क्वेश्चन को दोबारा से रिविजिट करना, राइट? सो दीज थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स व्हाइल यू अटेम्प्टिंग द क्वांट सेक्शन, राइट? दीज थ्री थिंग्स you should keep in mind. Okay, so now the second section is verbal ability में जो blue box में चीज लिखी हुई है that you need to do on daily basis. And what is this? One sectional test, okay, vocabulary, two reading comprehension, paragraphs, reading synthesis and failure logs that you need to do on daily basis. इसमें कुछ भी like आपको daily basis पे करना ही है, ये must चीज, right? Now if I talk about the basic grammar, right? जो noun pronoun जो part of speech में जितने भी आपके 8 I think parts of speech होते हैं, तो उसमें noun pronoun adjective adverbs tenses जो भी है, इन सब के बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। द रीजन इज दैट जब कभी भी फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स लाइक प्रीवियस ईयर इफ आई टॉक अबाउट, तो उसमें 5 फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं, राइट? एंड पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें जो बेसिक ग्रामर होगी ना, इट प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल। इफ आई टॉक अबाउट द एरर स्पॉटिंग, तो एरर स्पॉटिंग में जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो वो ना पार्ट ऑफ स्पीच के ही रिवॉल्व अराउंड करते हैं। इट टेस्ट कि आपकी जो बेसिक ग्रामर है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो जो आपकी जो बेसिक ग्रामर है ना, लाइक दैट थिंग शुड बी वेरी क्लियर। जो ग्रामर के रूल्स होते हैं, ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, राइट? जब अगर आपने एक बार ग्रामर अच्छे से एज कर लिया, जो ग्रामर के रूल्स हैं वो आपने अच्छे से रिकॉल कर लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली, नाउ द सेकंड मेजर पोर्शन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इफ आई टॉक अबाउट द प्रीवियस ईयर, सो प्रीवियस ईयर देयर वाज अ 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ईच रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कम्स विद 6 क्वेश्चंस, राइट? सो दो में हो गए 12 क्वेश्चंस एंड 12 क्वेश्चन इज अ मेजर पार्ट ऑफ द वर्बल एबिलिटी, राइट? आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस दैट कम्स इन अ आईपीमेट इंदौर, ओके? सो 12 क्वेश्चन हो गए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। अलॉन्ग विद दैट तुम्हारे 5 क्वेश्चंस पैरा जंबल्स के, दैट इज फिक्स। तो मतलब 12 + 5 ये आपके 17 क्वेश्चंस, तो ये आपको कंपलसरी आना ही है। तो इसलिए ऑन अ डेली बेसिस आई हैव फिक्स कि आपको 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने हैं, आपको 3 पैरा जंबल्स करने हैं। सो जिससे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो एक्यूरेसी है, जो स्पीड है ना, ये सब आपकी बढ़ेगी एंड दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू इन दी मेन पेपर, राइट? नाउ उसके बाद ये आपके एरर स्पॉटिंग, जैसे मैंने आपको बताया दिया कि अगर आप ग्रामर करोगे तो ये एरर स्पॉटिंग आप इजीली कर लोगे, राइट? सो इफ यू गाइस फोकस कि मैंने ना कुछ चीज़ों को येलो तरीके से मार्क कर रखा है इन अ क्वांट सेक्शन, इन अ वर्बल एबिलिटी एंड इन अ लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन आल्सो, लाइक आई हैव मार्क्ड few टॉपिक्स विद द येलो कलर, राइट? सो जो भी येलो कलर से मार्क है, दैट इज वेरी रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्पेसिफिकली अबाउट आईपीमेट इंदौर। इफ आई टॉक अबाउट आईपीमेट इंदौर, इनकी वेटेज लाइक फ्रॉम द ईयर 2020 से ईयर 2023 तक इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा रही है। वर्बल एबिलिटी में तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ्स, एरर स्पॉटिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स, दिस इज द मेजर पोर्शन, राइट? अगर तुमने इसको कर लिया, लाइक अराउंड 90 to 95% पेपर यू आर डन विद। फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग को एज करने के लिए ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ्स को करने के लिए आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। अलॉन्ग विद दैट अगर कुछ रीडिंग मटेरियल है तो उससे गो थ्रू करना है। इट कैन बी मैगजीन, इट कैन बी न्यूज़पेपर, जो भी आपको ठीक लगे आप उससे गो थ्रू करो। दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर रीडिंग स्पीड एंड दैट विल हेल्प यू इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नाउ द लास्ट सेक्शन इज कम इन अ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन जो पर्टिकुलरली होता है वो आईपीमेट इंदौर में नहीं आता, बट जो से क्वेश्चंस है ना, दैट कम्स इन अ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट? सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में लॉजिकल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द लाइक ऑन अ डेली बेसिस यू हैव टू
give one sectional test daily on daily basis, right? One puzzle and one DI caselet. This is must. ये जो DI caselet and that will help you in the GIPMAT exam. That will help you in other private college entrance exam, right? Logical reasoning, Q and A, blood relations, puzzles, okay, Venn diagram. ये सब चीजें like these topic will just take you around 2 and like I'm saying that 2 hours is more than right required. It will take around only 1 घंटा, right? ये आपको 1 घंटे के ये सारे टॉपिक्स हैं. Go through from that. इनके बेसिक्स तो बहुत इजी है. बेसिक्स से go through कर लेना. उसके बाद थोड़ी बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना. But the most important thing in logical reasoning section is this: games and tournament, right? Games and tournament, puzzles and DI case slate. These all 3 topics are really very important. इंदौर में डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस का एक पजल आता है. इफ आई टॉक अबाउट 2022 उसमें गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आया था. 2023 में एक पजल आया था और उस पजल में 5 क्वेश्चन आए थे. सो यू कैन नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इन सब चीजों के टॉपिक्स की. इफ आई टॉक अबाउट द लॉजिकल सीक्वेंस सीरीज में इट्स लाइक जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, बिकॉज देयर आर n नंबर ऑफ लॉजिक्स एंड द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर फैमिलियर यू विल बिकम विद द टॉपिक्स. ओके, कोडिंग, इनपुट एंड आउटपुट, these directions, course of actions, assumption and reasoning, these all are very important. एक बार इनसे go through कर लेना. Okay, but logical reasoning में एक particular चीज ध्यान रखना कि puzzle, DI caselet, arrangements and games and tournaments ये चीज आपको करनी है, because वो previous year पे आया था तो आपको there are high chances कि इस year भी repeat होने के chances हैं. So please उनसे मतलब ignore मत करना, उन topics को complete करना है. So the most important part of your preparation is mock. अब mock देने से भी ज़्यादा important है उसका analysis करना. So mock देने के बाद 2 घंटे बैठ के 3 घंटे बैठ के उसका analysis करो कि जो questions तुमको आते थे वो तुम क्यों नहीं कर पाए, और जो questions तुमने करे हैं तुम उसको और जल्दी कैसे कर सकते हो. Like there is always scope for improvement and just look for it. If you see in this 30 days strategy, on every fourth day there is a mock test, right? So if I talk about IPMET Indore, so IPMET Indore में accuracy is the thing which you guys should focus on. And if I talk about IPMET Rohtak, तो Rohtak में speed matters more than accuracy, right? So जब तुम on every day 4 like जब तुम day 4 पे जब mock दोगे, so the thing you should keep in mind is that कि तुमको starting में जो 5 mocks है उस पर तुमको फोकस करना है कि तुम सिर्फ accuracy पे ध्यान दो. Like if you know 5 questions कि हाँ इसमें मैं 100% श्योर हूँ, then only go for that. कुछ भी फ्लूक, कुछ भी तुक्के आपको नहीं मारने इन द स्टार्टिंग ऑफ द 5 मॉक्स, राइट? देन ओनली यू विल नो कि व्हाट इज द रियल सिचुएशन इज, राइट? कि तुमको ऐसे कौन से ग्रे एरिया है जिस पे तुमको वर्क करना है, ऐसे कौन से बेसिक क्वेश्चन है जो तुम कर सकते हैं लेकिन तुमने नहीं किया, राइट? तो स्टार्टिंग के जो 5 मॉक्स हैं उसमें आपको बिल्कुल भी फ्लूक, बिल्कुल भी तुक्के नहीं मारने हैं. उसमें आपको लाइक जो आपको क्वेश्चन 100% आते हैं आप उस पर फोकस करोगे, राइट? उसके बाद जो लास्ट के 2-3 मॉक होंगे उसमें यू विल कंसिडर दैट मॉक एज अ रियल पेपर, और उसमें आपको फोकस करना है स्कोर अपने कि कैसे मैक्सिमाइज करना है, राइट? तो फोकस ऑन दैट. तो उसमें आप थोड़ा एक एजुकेटेड गैस बोलूँगा कि एजुकेटेड गैस आप कर सकते हो, राइट? आप ऑप्शन एलिमिनेट करके गो थ्रू कर सकते हो. तो ये आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जो लास्ट के 3 मॉक्स होंगे ना कि आपको उसको उसमें मैक्सिमाइज करना है. बट इन द फर्स्ट 5 मॉक्स यू हैव टू ओनली फोकस ऑन एक्यूरेसी, राइट? एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, तुक्के नहीं मारने. So this was the end of this video. If you guys have any doubts, if you guys have any queries, please let us know in the comment section. We'll definitely make video on the topic. Or if you want the similar kind of videos on the GIPMAT, on the IPMET Rohtak, or any other entrance exam, please guys let us know in the comment section. We are always here for you to help you in the IPMET journey. Thank you.